شہر میں چوری ڈکیتی کی بڑھتی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی اہلکار کو علاج کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والا پولیس اہلکار گارڈن ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہے۔ بات کریں گے سلمان سلیم سے، بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل اس وقت ہم کورنگی گودام چورنگی کے قریب موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر قبل یہاں پہ ایک واقعہ رونما ہوا۔ ایک پولیس اہلکار جس کی شناخت 24 سالہ عثمان کے نام سے ہوئی، جو کہ فائرنگ کے واقعے کے اندر زخمی ہوا۔ پولیس یہاں پر پہنچی، تحقیقات کا آغاز کیا تو پتہ چلا کہ واقعہ جو ہے وہ ابتدائی طور کے پر ڈکیتی مزاحمت بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک نجی کمپنی ہے۔ پولیس اہلکار زخمی حالت میں اس کمپنی کی طرف آیا اور یہاں پر جو سیکورٹی گارڈ تعینات تھا اس نے جو ہے وہ ایمبولینس کو بلایا اور ایمبولینس میں اس کو بٹھا کر جناح اسپتال روانہ کیا۔ تاہم کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کی حدود ہے، پولیس یہاں پر پہنچ چکی ہے، تمام شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ 2 کھول جو ہے وہ یہاں سے برآمد ہوئے ہیں 30 بور کے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت ہو سکتا ہے کیونکہ پولیس اہلکار گارڈن ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھا اور یہاں اپنے گھر کی جانب باہر آتا تھا۔ ہم سول کپڑوں کے اندر تھا، پینٹ اس نے پولیس والی پہنی ہوئی تھی لیکن شرٹ جو ہے وہ سول پہنی ہوئی تھی۔ تاہم یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے کراچی کے اندر، جو کہ پولیس اہلکار جس میں شہید ہو رہے ہیں، اس واقعے کا اس معاملے سے جو ہے وہ کوئی میل جول نہیں بتایا جا رہا۔ تاہم ایس ایس پی کورنگی طارق نواز سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، CCTV فوٹیج کیمرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی فوٹیجز حاصل کی جائیں گی، اس کے بعد مزید واضح ہو سکے گا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا ذاتی دشمنی ہے۔ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تاہم 2 کھول یہاں سے تحویل میں لینے کے بعد فورینسک کے لیے بھیجے جائیں گے، ان کو میچ کیا جائے گا، اگر وہ اسلحہ کہیں اور یوز ہوا ہے تو یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی۔ پولیس کی جانب سے اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ زخمی پولیس اہلکار عثمان کو جو ہے وہ طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ طبی امداد مکمل ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کا بیان قلمبند کیا جائے گا اور اس واقعے کا مقدمہ کورنگی صنعتی ایریا تھانے میں درج کیا جائے گا۔ جی، ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 12 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن میں 2 اسٹریٹ کرمنلز اور 3 گٹکا ماوا فروش شامل ہیں۔ کارروائیاں بہادر آباد، سولجر بازار، مبینہ ٹاؤن، سہراب کوٹ اور سائٹ سپر ہائی وے کے علاقوں میں کی گئیں، جن میں گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، تیار گٹکا ماوا اور نقدی برآمد کی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ لیاری کی گلیوں میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر عمل درآمد شروع۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے ذریعے سیوریج اور انفراسٹرکچر کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد انڈی خان کی زیر نگرانی یونین کونسل 8 اور 9 کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے زیر اہتمام ترقیاتی کام جاری ہیں۔ لیاری کی گلیوں میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی بندش کا تیسرا روز ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا فالٹ 50 گھنٹے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو سکا ہے۔ بندش کے باعث ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن مکمل طور پر بند ہے۔ ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کے فالٹ کے سبب ملیر کینٹ، ملیر ماڈل کالونی، کھوکھرا پار، میمن گوٹ اور بھٹائی آباد کے علاقے شدید متاثر ہیں۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا فالٹ 30 ستمبر کو پیش آیا تھا رات 9 بجے۔ اب جمعہ ہو گیا ہے، 3 اکتوبر ہے، لیکن اب تک یہ فالٹ ٹھیک نہیں کیا جا سکا۔ 50 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں بجلی کے اس فالٹ کو۔ ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر تاحال بجلی کا فالٹ درست نہیں ہو سکا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کی بندش کے باعث ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن مکمل طور پر بند ہے۔ ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کے فالٹ کے سبب ملیر کینٹ، ماڈل کالونی، کھوکھرا پار، میمن گوٹ اور بھٹائی آباد کے علاقے شدید متاثر ہیں۔ ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن کی بجلی بحال ہوتے ہی ملحقہ علاقوں میں پانی کی فراہمی فوری طور پر بحال کر دی جائے گی۔ واٹر کارپوریشن حکام کے الیکٹرک انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 50 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں پانی کی بندش کا تیسرا روز ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا فالٹ 50 گھنٹے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کی فالٹ کے سبب ملیر کینٹ، ماڈل کالونی، کھوکھرا پار، میمن کوٹ اور بھٹائی آباد کے علاقے شدید متاثر ہیں۔ کراچی کے الیکٹرک کی جانب سے ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا فالٹ۔ ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا فالٹ 30 ستمبر بروز منگل رات 9 بجے پیش آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی کے فالٹ کو 50 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔
तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर ताहाल बिजली का फॉल्ट दुरुस्त नहीं हो सका। महंगाई के नए तूफान की तैयारियां, डेयरी फार्मर्स का दूध 40 रुपए लीटर महंगा करने का मुतालबा, होलसेलर्स और रिटेलर्स ने 35 रुपए इजाफा मांग लिया। सैलाब की तबाहकारियों के बाद कीमतों में इजाफा नागुज़ीर करार दिया गया। दूध की कीमतों का तयन न हो सका। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास बगैर नतीजा ख़त्म हो गया। सिंध फूड अथॉरिटी की मुज़र सेहत टैंकियों के इस्तेमाल की निशानदही, कमिश्नर कराची का 6 महीने में टैंकियाँ तब्दील करने का हुक्म। इजलास में डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़ था कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। इजलास में डेयरी फार्मर्स ने 40 रुपए जबकि रिटेलर्स और होलसेलर्स ने 35 रुपए फी लीटर इजाफे का मुतालबा किया। इजलास में दूध की टैंकियों की तब्दीली पर भी बात हुई। सिंध फूड अथॉरिटी ने एतराज़ उठाया कि मार्केट में ऐसी टैंकियाँ इस्तेमाल हो रही हैं जो दूध की ताजगी के खिलाफ हैं। दूध फरोशों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो फौरी तौर पर टैंकियाँ तब्दील करने की पोजीशन में नहीं हैं। कमिश्नर कराची ने सिंध फूड अथॉरिटी को हिदायत दी कि कौन सी धात की टैंकी इस्तेमाल होनी चाहिए, इस पर रिपोर्ट तैयार की जाए। कमिश्नर कराची ने मजीद कहा कि 6 माह में टैंकियों की तब्दीली को मुमकिन बनाने की कोशिश की जाएगी। आइंदा इजलास में दूध के नमूने हासिल करने के लिए कमेटी भी कायम करती। गैर कानूनी इमारत जहां भी होगी गिरा दी जाएगी। DGSBCA का सिंध भर में खतरनाक इमारतों के सर्वे का हुक्म। फील्ड अफसरान को रोजाना की सरगर्मियों का रिकॉर्ड फील्ड बुक में दर्ज करने की हिदायत। कहा फील्ड अफसरान की कारकर्दगी का ग्रेडिंग सिस्टम मुरतब किया जाएगा। सिंध में साफ पानी की फराहमी, सफाई का इंतजाम बेहतर बनाने का मिशन। स्टार वॉश प्रोग्राम के पहले फेज से 20 लाख अफराद को फायदा पहुंचा। वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक का मिशन मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। सिंध में साफ पानी की फराहमी, सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का मिशन। स्टार वॉश प्रोग्राम के पहले फेज से 20 लाख अफराद को फायदा पहुंचा। इंटरमीडिएट साल अव्वल प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के नताइज का ऐलान। 19,023 तलबा और तालिबात इम्तिहान में शरीक हुए। 8,569 उम्मीदवार तमाम 6 पर्चों, 1,392 उम्मीदवार 5 पर्चों में कामयाब हुए। 2,357 उम्मीदवार 4 पर्चों में पास हुए। 2,334 उम्मीदवार 3 पर्चों में, 1,882 उम्मीदवार 2 पर्चों में कामयाब। 1,392 उम्मीदवार सिर्फ 1 पर्चा पास कर सके। इंटरमीडिएट साल अव्वल प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के नताइज का ऐलान। 19,023 तलबा और तालिबात इम्तिहान में शरीक हुए। आपको आगे बढ़ें, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। शहर कायद में बारिश के बाद खेलों के ग्राउंड भी मुतासर हो गए। मलीर मारवी गोट में ग्राउंड तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीन कहते हैं कि पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों में इजाफे का खदशा है। कराची में बारिश जल थल एक हो गया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा, खेल के मैदान भी खिलाड़ियों से खाली। मलीर मारवी गोट जालंधर ग्राउंड तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी जमा रहने से मच्छरों की अफजाइश। इलाका मकीन कहते हैं हालिया बारिशों ने ग्राउंड को तबाह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से सफाई भी नहीं होती। अभी भी जमा हुआ भाई, यहाँ भी जमा हुआ पानी। ये बारिश का पानी कब से जमा है? जब से बारिशें लगी खुद ही सूखता है। तो कोई हटाने वाले कोई सामने हटा, यहाँ पे सब बड़े बड़े बैठे हैं, हम सबको मालूम है। ये बड़े को मालूम है, हमें यहीं से गुजरते हैं। खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने से बच्चे अफसरदा। कहते हैं कि सुबह के वक्त स्कूल में खेल लेते हैं, ग्राउंड तालाब बन गया, अब गलियों में खेलते हैं। अगर ग्राउंड में पानी होता है तो हम स्कूल में खेल लेते हैं। अगर ग्राउंड में पहले पानी नहीं था, बारिश होती थी, सूख जाता था, खुद ही सूखता था। अभी बारिश हुई, अभी पानी है, अभी हम स्कूल में खेलते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर खेल के मैदान से नक्कासी आपके फौरी इकदाम न किए गए तो डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा यकीनी है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात के चेक्स तकसीम करने की तकरीब के मौका पर उन्होंने कहा कि इंतजामी अखराजात बढ़ने से आवाम को सहूलियात की फराहमी में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। इंतजामिया का बेहतरीन इकदाम, रिटायर्ड मुलाजमीन को उनका हक अदा कर दिया गया। टाउन मुलाजमीन का पेंशन में हाइल रुकावटें दूर करने का मुतालबा। नॉर्थ नाजाबाद टाउन में रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले 20 मुलाजमीन और उनके लवाहिकीन में मजमूई तौर पर लेवल इनकेशमेंट की मद में 80 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए, जिससे रिटायर्ड मुलाजमीन के चेहरे खिल उठे। अब मेयर कराची भी उनकी पेंशन में हाइल रुकावटों को दूर करें। बहुत खुशी हुई सर, आपकी बहुत बहुत थैंक यू। 3 महीने के बाद हमारा चेक मिल गया, आपका शुक्रिया। पूरे बाकायदात का मुझे चेक मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और टाउन में काम बहुत अच्छा हो रहा है।
मेरा शौहर था यूं बस इसका चेक था, उसकी डेथ हो गई है, इसलिए उसका मुझे चेक मिला है। मेयर कराची को चाहिए कि जो ये जो रिटायरमेंट मुलाजिम हुए हैं इनके लिए मेहरबानी करे कि इनके लिए कुछ रास्ता बनाए। वो चेयरमैन नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन आतिफ अली खान ने कहा कि वज़ीर बल्दियात सईद नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया है कि वो सूबाई मालियाती कमीशन का इजलास तलब करके टाउन हुकूमतों के माहाना शेयर्स में इजाफा करें। देखिए, हमारे पहला तो यही है कि हमारी ऑब्जेक्टिव को बढ़ाया जाए। उसकी वजह यह है कि इस साल भी जो एम्प्लॉयज का इंक्रीमेंट हुआ है टाउन ने उसको एम्प्लॉयज के इंक्रीमेंट को रोका नहीं है, बल्कि हमने फौरन अदायगी कर दी है। अब जिस तरह से इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं और उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो सारी तो एम्प्लॉयज के उसमें तनख्वाहों में चली जाती है और बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट है वो बचता है। उसमें पहले तौर पे हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि ऑब्जेक्टिव के फार्मूले को रिवाइज करें और जो है ना टाउन की एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑब्जेक्टिव दे ताकि डेवलपमेंट का काम भी जो है साथ साथ शुरू किया जा सके। नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन साबिक मुलाजमीन के वाजिबात मुकम्मल तौर पर अदा करके टाउन हुकूमतों में सरफहरिस्त आ गया है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। लियारी की गलियों में तरक्याती कामों का जाल बिछाने का मिशन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अमल दरामद शुरू। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के जरिए सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल किए जाएंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद अंडी खान की ज़रिए निगरानी यूनियन काउंसिल 8 और 9 का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। लियारी की गलियों में तरक्याती कामों का जाल बिछाने का मिशन है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अमल दरामद शुरू। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के जरिए सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल किए जाएंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद अंडी खान की ज़रिए निगरानी यूनियन काउंसिल 8 और 9 का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। कारोबारी हवाले से खबर यह है कि सितंबर में तिजारती खसारा माहाना 16% रिकॉर्ड, सालाना तिजारती खसारे में 46% इजाफा रिकॉर्ड। सितंबर में तिजारती खसारा बढ़कर 3 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जबकि सितंबर 2024 में तिजारती खसारा 2 अरब 29 करोड़ डॉलर था। अशरफ खान की रिपोर्ट। इदारे शुमारियात पाकिस्तान ने मईशत का अहम डाटा जारी कर दिया। सितंबर 25 में तिजारती खसारा माहाना 16%, जबकि सालाना 46% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 25 में तिजारती खसारा बढ़कर 3 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जो सितंबर 24 में तिजारती खसारा 2 अरब 29 करोड़ डॉलर रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि सितंबर 25 में बरामदात माहाना 3.6% इजाफा, जबकि सालाना 11% कमी हुई, जो सितंबर 25 में बरामदात 2 अरब 50 करोड़ डॉलर रही। साथ ही सितंबर 25 में दरामदी बिल माहाना 10% और सालाना 14% का इजाफा हुआ। सितंबर 25 में दरामदी बिल 5 अरब 84 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गया। रवा माली साल के 3 माह में तिजारती खसारा 33% बढ़कर 9 अरब 36 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 3 माह में बरामदात 3.8% कमी से 7 अरब 60 करोड़ डॉलर रही, जबकि रवा माली साल 3 माह में दरामदी बिल 13.5% इजाफे से 16 अरब 97 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुका है। अशरफ खान, सिटी 21। मईशत का अहम हिस्सा सीमेंट सेक्टर भी चल पड़ा। सीमेंट की एक्सपोर्ट और मुकामी फरोख्त में इजाफा। माली साल 2025 की पहली सहमाही में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 16% बढ़कर 1 करोड़ 21 लाख 61 हजार टन पर पहुंच गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, सीमेंट एक्सपोर्ट और मुकामी फरोख्त में इजाफा। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 की पहली सहमाही में सीमेंट की फरोख्त में 16.25% का इजाफे से 1 करोड़ 21 लाख 61 हजार टन रही। रवा माली साल 3 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 15% इजाफे के बाद 95 लाख 73 हजार टन रही। साथ ही रवा माली साल 3 माह में सीमेंट की बरामदात 20.81% इजाफे से 25 लाख 89 हजार टन रही। रिपोर्ट के मुताबिक माह सितंबर में सीमेंट की कुल फरोख्त 7% इजाफे के बाद 42 लाख 50 हजार टन रही, जो सितंबर 24 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 39 लाख 70 हजार टन थी। सितंबर 25 में 1 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 14% इजाफे से 34 लाख 18 हजार टन रही, और इसी 1 माह में सीमेंट की बरामदात 15% कम होकर 8 लाख 31 हजार टन रही है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का कहना है कि सीमेंट इंडस्ट्री की नमू मजीद बेहतर होगी, बशर्तिया के हुकूमत ड्यूटी और टैक्सों में रियायत दे, जो आखिरकार सार्फिन के लिए ही फायदे में होगा। अशरफ खान, सिटी 21। रोटरी क्लब ब्लूज की जानिब से नई गवर्निंग बॉडी के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। पुरवकार तकरीब न्यू नाज़िमाबाद जिमखाना में मुनक्किद हुई, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, खवातीन और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट। इंसानी फलाह बहबूद में NGOs का किरदार काबिल सताइश। रोटरी क्लब ब्लूज की नई गवर्निंग बॉडी के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई।
जिसमें डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान और सिंध गवर्नर रोटरी क्लब शकील कायम खानी ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। शकील कायम खानी का कहना था कि रोटरी क्लब नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है। रोटरी क्लब के तहत हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के बड़े प्रोजेक्ट्स कामयाबी से जारी हैं। फोरम के प्रेसिडेंट और एंकर पर्सन रिजवान जाफर का कहना था, हमें एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होना चाहिए। अच्छी नीयत के साथ शुरुआत की जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। तकरीब में नौ मुंतखब सदर तहसीन इस्लाम और दीगर अहदेदारों ने अज़म का आदा किया कि आने वाले दिनों में मजीद फलाही मंसूबे शुरू किए जाएंगे और मेंबरशिप बढ़ाने पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। तो इस हवाले से ये हर साल बड़ी ज़बरदस्त गैदरिंग होती है, इसमें कम्युनिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाता है और पूरे साल में उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से क्या वर्किंग होती है वो देखी जाती है। तकरीब का मकसद नौ मुंतखब अहदेदारान के साथ रोटरी क्लब को फाल करना था। कैमरामैन फरहान के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। जापान और पाकिस्तान के सकाफती ताल्लुक़ को फ़रोग़ देकर सिंध में जारी जापान फिल्म फेस्टिवल 15 रोज़ तक जारी रहने के बाद इख्तिताम पसीर हो गया। हमदर्द यूनिवर्सिटी में वी मेक एंटीक फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। काउंसिल जनरल जापान की खुसूसी शिरकत। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। जापानी फिल्म फेस्टिवल रंगारंग रनाइयों के बाद इख्तिताम पजीर। हमदर्द यूनिवर्सिटी में फिल्म फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब। जापानी कौंसल खाना कराची की ज़ेरे एहतमाम फिल्म फेस्टिवल बिला आखिर इख्तिताम को पहुंचा। हमदर्द यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के ऑडिटोरियम में तकरीब मुनक्किद हुई। वी मेक एंटीक नामी फिल्म से तलबा महजूज हुए। फेस्टिवल को तलबा की जानिब से खूब पजीराई मिली। हमें भी उस चीज़ से सबक मिलता है कि हमारे अंदर की जो सलाहियत है ना उसको हम बाहर लेके आएँ और हम दुनिया को दिखाएं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवी थी, देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें सीखने को मिली। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, कहानी भी बहुत अमेजिंग थी। इसमें जापान अपने कल्चर के बारे में, अपने फ़न के बारे में बता रहे थे कि वो अपने फ़न को कैसे इम्प्रूव करते हैं और इस पर कैसे काम कर रहे हैं। कौंसल जनरल जापान हातूरी मसारू ने कहा कि रवा साल 7 के करीब फिल्मों के सिंध के मुख्तलिफ तालीमी व सकाफती इदारों में रूनुमाई की गई। फिल्म फेस्टिवल के कामयाब इनकाद के बाद जापान फेस्ट का इनकाद भी कराची में जल्द होगा। शेखुल जामिया शबीबुल हसन ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल का मकसद तलबा को जापानी फिल्म से मुत्तलिक बताना है। तालीम के साथ ऐसी सरगर्मियाँ तलबा के लिए ज़रूरी हैं। उस हवाले से हम वो एक कल्चरल माहौल, एक आगाही वैल्यूज़ के हवाले से, कल्चर के हवाले से देना चाहते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन मौका था ये कि जापानीज़ फिल्म फेस्टिवल का जो इख्तितामी सेशन था वो हमने अपने पास रखवाया ताकि हमारे बच्चे उन कल्चर, उन वैल्यूज़ के हवाले से आगाही हासिल कर सकें। तकरीब में वाइस कौंसल जापान समेत यूनिवर्सिटी के चांसलर और फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए। इख्तिताम पर गुलदस्ता पेश किया गया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।